ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीन मैपिंग के अंदर पहले जीन को ढूंढते हैं और फिर जीन के अंदर म्यूटेशन ढूंढते हैं। सिंपली अगर सादा अल्फाज में कहा जाए जीनोम मैपिंग क्या है या जीन मैपिंग क्या है, कि हमने पूरे जीनोम के अंदर उस ट्रेट के मुतल्लिका पहले जीन ढूंढना है और फिर उस जीन के अंदर हमने म्यूटेशंस ढूंढनी है। ये है काम जी। यहाँ से पढ़ें जी जी। A complete description of the mapping resources available for all species will require an entire book. Therefore, this chapter focuses primarily on humans with some references to resources for other organisms. ठीक है जी। तो आप इस तरह का काम हर ऑर्गेनिज्म पे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने कहा कि इस पे काम लिखा जाए तो पूरी किताब इसी पे लिखी जा सकती है, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन को यहाँ पर फोकस करेंगे। जी प्लीज। रुबाब को पढ़ने दे जरा, रुबाब ये पढ़े यहाँ से ऑनवर्ड। हेलो, नहीं है, चलें आप पढ़ें दोबारा मारिया। Mapping of whole genome for humans and organisms is dramatically impacting the utility of based information and methodology. Genomic mapping this sequence are treated as separate entities, but large uninterrupted DNA sequences tracks can be thought of and used as an ultra-high resolution mapping technique. Traditional genomic maps that rely on genomic markers and either clone-based or statistical approaches for ordering a precursor to finish and completely annotated DNA sequences of whole chromosomes or genomes. However, such completed genome sequences are predicted to be publicly available only in 2002 for humans, 2005 for the mouse, and even later for other mammalian species. Although incomplete sequences अच्छा ठहर दे जरा, किरण अकील को बात करना चाह रही है। किरण अकील जी, किरण अकील। अच्छा ये क्या हो रहा है? समरा गलती से हैंड रेज हो गया था जी। अच्छा जी, समरा सियाल कह रही है हर किसी को अच्छा जी मेरी अच्छी गुजरी। अच्छा जी, आपस में भी चैट चल रही है। अच्छा जी, पढ़े जी। And selected lower eukaryotes see chapter 15 until these completed sequences are available. Mapping and sequencing approaches to genome analysis serve as complementary approaches for chromosome analysis. Before determination of an entire chromosome sequence, the types of sequence available can be roughly grouped into marker or gene-based tags. Example, press sequence tags, ESTs, and sequence tags sites. STS, single gene sequence, pre-finished DNA clone sequences, and completed continuous genomic sequence threads. The first two categories press sequence tags, ESTs, and sequence tag sites, STS, single gene sequence, pre-finished DNA clone sequences, and completed continuous genomic sequence tracks. ठीक है, ये 4-5 चीजें उसने कहा कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे चलें। हेलो, हेलो। सर लगता है डिस्कनेक्ट हो गया मेरे फोन का। अच्छा चलें, आप सामा पढ़ें। जी सर। The first two categories provide rich sources of the genomic markers used for mapping, but only the last two categories can be reliably ordered genomic elements. The human genome draft sequence is an example of pre-finished sequence in which greater than 90% of the entire sequence is available. But most continuous sequence tracks are relatively short
usually less than 100 kb and often less than 10 kb, thus providing high local resolution but little long-range ordering information. Genomic maps can help provide a context for this sequence information. Thus, two or more sequences containing unique genomic markers can be oriented if these markers are ordered on a map. In this way, existing maps serve as scaffold for orienting, directing, and troubleshooting sequencing projects. Similarly, users can first define a chromosomal region of interest using a traditional map approach and then can identify relevant DNA sequences to analyze by finding long sequences containing markers mapping within a defined region. ये वही बात NCBI जो हमने की है कि सबसे पहले हमने जीन देखना है, बल्कि जीन से पहले भी अगर आप कहें तो पहले हमने क्रोमोसोम देखना है। जैसे ही आपको जीन का पता चलता है वैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये किस क्रोमोसोम के ऊपर है, और उसके बाद उस जीन के सीक्वेंस को देखा जाता है। सीक्वेंस को देखने के बाद हमने उसके वेरिएंट्स देखने हैं, म्यूटेशन देखनी है, जिनको हम मार्कर बोलते हैं। जी, NCBI tools such as BLAST and electronic PCR ePCR are valuable for finding marker sequences. ePCR क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉनिक PCR सर हमने जो किया था वो तो दूसरा था, वो रियल टाइम PCR था वो। हाँ, वो रियल टाइम PCR था, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक PCR आमतौर पर कंप्यूटर के ऊपर जब हम PCR लगाते हैं, सिमुलेट करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक PCR कहते हैं, या जिसको हमने इन सिलिको PCR भी बोलते हैं, इन सिलिको PCR। ठीक है सर। जी, are available for finding marker sequence identities, and several of the resources discussed below provide marker sequence integration. जी, As large sequence tract emerge from the human and model organism projects, sequence-based ordering of genome landmarks will eventually supplant map-based ordering methods. The evolution from a mapped chromosome to the determination of the chromosome's complete sequence is marked by increasing incorporation of the partial genomic sequence tracts into the underlying map. Once complete finished sequence can be used to confirm map determined marker order. Given the error rates inherent in both map and sequence assembly methodology, it is a good practice to use both map and sequence information simultaneously for independent verification of regional order. ठीक है जी। तो एक अच्छा आगे पढ़ेंगे। Genomic अच्छा, map अब ये देखें, elements. अब ये देखें, ये हम अब क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। जी, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है? थोड़ा सा ब्रीफ बता दें कि हम क्या डीएनए डिस्कस मार्कर, करेंगे, पॉलीसोम मार्कर्स, डीएनए क्लोन, ताकि मैं वो एक कहानी ज़हन में बैठ जाए। कहानी ज़हन में बैठ जाए। जेनेटिक लिंकेज मैप्स, रेडिएशन हाइब्रिड मैप्स, ट्रांसक्रिप्ट मैप्स, फिजिकल मैप्स, comparative maps, integrated maps, complexity in the pitfalls of the map. अच्छा जी, कहानी ये है कि देखिए आपके सामने ये फुल जीनोम आ गया। फुल जीनोम को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद इसको सीक्वेंस कर लिया जाता है। ठीक है, इसको सीक्वेंस कर लिया जाता है। जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है तो फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हमारे पास फर्ज किया एक ट्रेट है, हम कहते हैं जी हॉर्न्स। तो कुछ एनिमल्स के अंदर हमारे पास हॉर्न्स होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे, तो लिहाजा जो हॉर्न्स वाला ग्रुप है वो भी सीक्वेंस हो जाएगा, और जो हॉर्न लेस ग्रुप है वो भी सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस होने के बाद
फिर हमने ये देखना होता है कि कौन से ऐसे जीनोमिक रीजन जो हैं वो अंडर सिलेक्शन है इस ट्रेट के, और कौन से ऐसे, ये दूसरा जीनोम है जिसके अंदर हॉर्न्स नहीं है, जो कि हॉर्न लेस है। ठीक है जी, इसको भी हम ऐसे छोटा छोटा करके शेयरिंग करके सोनिकेशन करके इसको छोटे फ्रेगमेंट्स में फ्रेगमेंटाइज करते हैं। उसके बाद इसको सीक्वेंस कर लिया जाता है। सीक्वेंस करने के बाद अब हमारे पास एक ये जीनोम है, एक ये जीनोम है, अब हमारे पास कंपैरिजन हम इन दोनों का कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारी फिर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। लाइक आपने देखा होगा एक टेक्निक कहलाती है FST, एक टेक्निक कहलाती है, ये वो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हैं जिनसे आप ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इस जीनोम और इस जीनोम में बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। फर्ज किया आपने FST एनालिसिस किया, उससे आपको पता चल गया कि इस पूरे जीनोम के अंदर ये जो हॉर्न है, इनके अंदर एक रीजन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर है, वो अंडर सिलेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जगह जो है क्रोमोसोम नंबर 5 की, ये डिफरेंट हो सकती है इससे, क्योंकि ये जो FST एनालिसिस जब हमने इस पे किया तो इसने बताया कि ये वाले जो रीजन है ये वाला अंडर सिलेक्शन है, लेकिन ये वाला अंडर सिलेक्शन रीजन जो है इसमें नहीं निकला। तो हमारा फौरी तौर पर ज़हन जाएगा कि चूंकि हम हॉर्न का ट्रेट डिस्कस कर रहे हैं तो माइट भी ये वाला जो रीजन है ये इसके अंदर कोई ऐसा जीन हो जो कि हॉर्न को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एक और तरीका है, अगर FST नहीं लगाना तो आप आमतौर पर हम एक और है कोचरान मेंटल हैंजल टेस्ट, CMH टेस्ट, वो लगा देते हैं। इसके अलावा आप एक और मेथड है EHH, वो मेथड लगा देते हैं। तो ये कई तरीके हैं। इसी तरीके से जो मैंने तरीका अप्लाई किया उसका नाम था पूल्ड हेटेरोजाइगोसिटी, HP स्कोर। ठीक है, इसी तरीके से FST है। अच्छा, एक और है TD, ताजिमाज D। बेशुमार ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम अपना सिलेक्शन सिग्नेचर्स देखते हैं कि भाई ये असल में आप पूछे तो क्या है कि पूरी की पूरी एक डिटेल है, इनके आप फार्मूलाज देख सकते हैं, ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये पूल्ड हेटेरोजाइगोसिटी का फार्मूला है, बड़ी डिटेल आगे चली जाएगी तो आप अभी उस पर ना पढ़ें। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि पूल्ड हेटेरोजाइगोसिटी जो है ये क्या फार्मूला होता है। ये पूल्ड हेटेरोजाइगोसिटी जो है हम कैसे अप्लाई करते हैं कि पूरे जीनोम के ऊपर, ये देखिए पूरे जीनोम के अंदर 3000 मिलियन बेस पेयर्स हैं फर्ज किया, तो इन सारों के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी, ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला होता है सिग्मा summation of n major alleles plus multiply sigma of n minor alleles, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है सिग्मा n मेजर प्लस सिग्मा n माइनर और होल का स्केयर। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जाता है हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर 3000 मिलियन बेसिस के ऊपर, और उसके नतीजे में हमारे पास कुछ ऐसे रीजन्स आ जाते हैं जो कि अंडर सिलेक्शन होते हैं, और वो देख लिया जाता है कि किस तरीके से इस जीनोम का इस जीनोम के साथ डिफरेंस है। तो हमें पता चलता है कि हॉर्न्स का ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर ये एक रीजन जो है ये इसका हिट आया है, एक ये हिट आया है क्रोमोसोम 6 के ऊपर,
ये हिट आया है क्रोमोसोम 11 के ऊपर या क्रोमोसोम 25 के ऊपर। हम ये कहते हैं कि ये जो 3 रीजन्स हैं ये माइट बी एसोसिएटेड हो सकते हैं हॉर्न के साथ, क्योंकि ये वाले रीजन जो है ये अंडर सिलेक्शन नहीं है इस जीनोम के अंदर, ये अंडर सिलेक्शन है इस जीनोम के अंदर, और ये अंडर सिलेक्शन नहीं है क्योंकि यही काम जब आप एक जीनोम पे करेंगे तो दूसरे ग्रुप पे भी करेंगे। तो हमें मिला कि इसके अंदर ये सिलेक्शन सिग्नेचर्स आई हैं जबकि इसके अंदर ये सिलेक्शन सिग्नेचर्स नहीं आई हैं। तो अब हमें एक हल्का सा आइडिया मिल गया कि सींगों के मुतल्लक ये वाले जो 3 रीजन है ना ये माइट भी पॉसिबल हो सकते हैं। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इन जीन्स को देखेंगे, इन रीजन्स को देखेंगे, इनको सिलेक्शन सिग्नेचर्स कहते हैं, और फिर उसके बाद इन जीन्स उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन से जीन्स हैं। तो फर्ज किया हमें कोई ऐसा जीन मिल जाता है जो ऑलरेडी किसी और स्पीशी के अंदर भी हॉर्न के साथ रिलेटेड है, तो हम अपनी स्पीशी में भी उसी जीन को स्टडी करना शुरू करते हैं और उसका सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास पहले ही पड़ा होगा। अब उसकी म्यूटेशंस ढूंढेंगे और म्यूटेशन ढूंढने के बाद हमने क्या किया है, ये सारा जीन मैपिंग की है, जीनोम लिया था, उसमें जीन्स ढूंढे थे, उसके बाद उनके वेरिएंट्स ढूंढे। तो ये अब जब सीक्वेंस आपने करना है तो ये जो सीक्वेंस है, अब फर्ज किया ये वाला एक रीजन था, उस रीजन के अंदर एक जीन आपने ढूंढ लिया, अब उस जीन का जो सीक्वेंस देख लिया। अब सीक्वेंस जो है वो कितनी किस्म का हो सकता है जो कि इस ट्रेट के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो हो सकता है फर्ज किया वो कितनी किस्म के हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि अब हम जीन तो ढूंढ लिया, अब जीन के अंदर चले गए आप सीक्वेंस में, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा मिटेगा कैसे, क्लियर कर दें। अच्छा क्लियर ऑल, ठीक है जी। अब आप एक जीन आपने ढूंढ लिया, उसके अंदर ये सीक्वेंस है। अब ये जो SNVs है ये क्या, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती है, ये मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती है, ये कॉपी नंबर वेरिएंट्स हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स हो सकते हैं, ये इंसर्शंस हो सकती हैं, ये डिलीशंस हो सकती हैं। तो इतनी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि उस हॉर्न के ट्रेट के रिस्पॉन्सिबल मार्कर्स हो सकते हैं, तो इनको बोलते हैं मार्कर्स। ये है मार्कर्स, ठीक है जी। ये मैपिंग कहलाती है। ये मैंने आपको एक तरह की मैपिंग बताई है, इसके अलावा भी बड़ी मैपिंग है। फिजिकल मैपिंग अलहदा है, जेनेटिक मैपिंग अलहदा है, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली अपने ज़हन में ये बैठाएं, जो भी मैपिंग हम यूज करेंगे, जो भी मैपिंग की टेक्निक यूज करेंगे, उसमें असल में हमने जीन ही ढूंढना होता है और जीन के अंदर वेरिएंट्स ढूंढने होते हैं, और वो जो वेरिएंट्स हैं वो कितनी किस्म के हो सकते हैं। SNPs हो सकती हैं, MNPs हो सकती हैं, CNVs हो सकती हैं, SV हो सकती हैं, इंडल्स हो सकती हैं, डिलीशंस हो सकती हैं, ट्रांसलोकेशंस हो सकती हैं, इन्वर्जन्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो हैं इनको हम मार्कर्स बोलते हैं, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं मार्कर्स, ठीक है जी। असल में हम जो भी जेनेटिक टेक्निक, जो भी जेनेटिक मैपिंग यूज करने जा रहे हैं उसमें हम यही काम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके ज़हन में एक छोटी सी स्टोरी बन जानी चाहिए, ठीक है जी। जी सर बन गया सर। लेकिन वो जो हमने सीक्वेंस दोनों लिए जीनोम्स के, उनको हम ब्लास्ट से भी तो चेक कर सकते हैं। हाँ ब्लास्ट चेक कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस आपको एक ब्लास्ट से एक म्यूटेशन आ गई है, जी सर, तो आपको कौन बताएगा ये किस जीन में है? वो तो पूरे का पूरा जो सीक्वेंस है वो आपने ब्लास्ट कर दिया, मैप वो कर दिया, अलाइन किया। जी सर। तो अलाइन करने के बाद आपको एक म्यूटेशन तो मिल गई है, अब उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, और उस वो जो म्यूटेशन आई है, म्यूटेशन तो नहीं कहना चाहिए, वो जो वेरिएंट आया है वो किस जीन के अंदर है कोई पता नहीं। इसका मतलब ये है, इनको बोलते हैं एनोटेशन। इसका मतलब है हमें एनोटेशन भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि वो जो वेरिएंट है वो किधर पड़ा हुआ है,
वो किस जीन में है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर अलाइनमेंट से हमें कुछ वेरिएंट्स पता भी चल जाते हैं, सो दिस इज नॉट आप ये कहें कि आप इसका ऑल्टरनेटिव भी तो देखेंगे ना, आप वही तस्दीक किसी और टेक्निक से भी तो करना चाहेंगे ना। तो ब्लास्ट ही ज़ाहिर है एक टेक्निक नहीं है डिफरेंसेस देखने के लिए, तो उसके अलावा भी हमें उसको कंफर्म करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आगे टॉपिक ही हमारा ये है वैसे, जीनोमिक मैप्स एलिमेंट्स। जो मैपिंग के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जी, पढ़ें DNA markers. जी शाबाश, ये जो अभी मैंने जिक्र किया जी सर। A DNA marker is simply a uniquely identifiable segment of DNA. There are several types of markers, usually ranging in size from 1 to 300 to 400 nucleotide bases in size. जी। Markers can be thought of as a landmarks, and a set of markers whose relative position or order within a genome are known comprises a map. जी। Markers can be categorized in several ways. Some markers are polymorphic and other are not monomorphic. जी जी Detection जी। of markers. ये पॉलीमॉर्फिक जो मैंने आपको कहा है SNPs और MNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। Some markers are polymorphic and others are monomorphic. Detection of markers may be either PCR based or hybridization based. अब मार्कर्स देखिए, आपने होल जीनोम सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद आपने जीन ढूंढ लिया, अब जीन के अंदर आपने म्यूटेशंस ढूंढनी है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप PCR यूज कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आगे चलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं, PCR यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। Some markers lie in a sequence of DNA that is expressed. Some do not, or their expression status may be unknown. जी। PCR-based markers are commonly referred as a sequence tagged site (STS). हाँ जी, PCR बेस्ड मार्कर बोलिए जरा। STS. PCR based markers are commonly referred to as sequence tag sites. जी सर। STS. An STS is defined as a segment of genomic DNA that can be uniquely PCR amplified by its primer sequences. Very good. ये ज़हन में बैठा लेंगे STS क्या है। वो वाले मार्कर जिनको हम PCR के थ्रू एम्पलीफाई कर सकें वो कहलाते हैं सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। STS are commonly used in constructions of physical maps. जी। STS markers may be developed from any genomic sequence of interest, such as from characterized and sequenced genes or from express sequence tags (ESTs). EST express sequence tags होते हैं, ये इसमें वो चीजें आती हैं जो कि हम ये देखते हैं कि इनको आमतौर पर आप ये कहते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है जो के प्रोटीन बनाने जा रहा है। देखिए पूरा जीनोम जो है, पूरा जो जीन है उसके अंदर एंट्रोनिक रीजन भी होते हैं, एक्सोनिक, एंट्रोनिक, एक्सोनिक, तो ये सारे का सारा EST नहीं कहलाता। EST वो कहलाता है जो कि समझ लें एक्सोन 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 सारों को मिला दिया जाए तो मैसेंजर RNA में जो सीक्वेंस बनेगा वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहलाता है, यानी कि ये वो सीक्वेंस है जीन का जो कि प्रोटीन बनाने जा रहा है। ठीक है जी सर। Alternatively, STS may be randomly identified from total genomic DNA. The EST database DBEST at NCBI stores information on most STS markers. ठीक है जी। The EST database जिसका नाम DBEST, EST database जिसका नाम डाटा बैंक EST है, डाटा बैंक EST है, NCBI में पड़ा हुआ है, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है STS मार्कर। इसको खोलें जरा।
DBEST जी सर, खोलते हैं। यहीं पे पड़ा होगा DBEST। जैसे ये देखें DBGAP है, सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये देखें DBGAP है, DB वॉर है, वॉर। अच्छा, इधर नहीं आ रहा, कोई उसका नाम ना चेंज हो गया। सर क्वेश्चन में पुरानी है नाम। DBEST इसमें देखें कहीं है, मेरे ख्याल इसका नाम चेंज हो गया। DB वेरिएंट है, DBSLP है, DBGAP है। चलें आगे जाके शायद इसका कोई लिंक देगा, तो वो लिंक उस वक्त खोलेंगे। ठीक है सर। DBEST, ये देखिए जरा, ये क्या है? DBEST यही है। ठीक है। जी सर। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन आगे जाके देखते हैं, शायद उसका लिंक उसने दिया जी। एक तो ये हो गया आपके DNA मार्कर्स, जिनको वो आमतौर पर वो कह रहे हैं कि द EST डेटाबेस एट NCBI स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन मोस्ट सीक्वेंस टैग मार्कर्स। आगे आएंगे पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स। Polymorphic markers. Polymorphic markers are those that show sequence variation among individuals. Polymorphic markers are used to construct genetic linkage maps. जी, ये देखिए, ये पॉलीमॉर्फिक मार्कर जो है, ये जेनेटिक लिंकेज मैप्स डेवलप करने में हेल्प करता है, और जो DNA मार्कर्स हैं ये आपके फिजिकल मैप्स, ये कहीं जिक्र हुआ है फिजिकल मैप्स का। जिससे दिखाओ, ये देखिए STSR जी। STSR commonly used for the construction of the physical maps, और जो आपके पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स हैं ये आपके कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप्स जी। The number of alleles observed in a population for a given polymorphism, which can vary from 2 to less than 30, determines the degree of polymorphism. Greater than 30. Greater than 30 determines the degree of polymorphism. For many studies, highly polymorphic markers greater than 5 alleles are most useful. Most useful. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ये इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मार्कर है, पॉलीमॉर्फिक मार्कर है, ये फर्ज किया इधर C है, ठीक है, ये इंडिविजुअल नंबर 1 है। आपने पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल जो हैं वो मैप किए हैं, 100 इंडिविजुअल का डाटा लिया है, तो ये 100 इंडिविजुअल का ये मार्कर आप देख रहे हैं, ठीक है जी। 100 के 100 इंडिविजुअल के अंदर आप ये वाली पोजीशन स्टडी करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो एक बंदे के अंदर ये यहाँ पर C था, दूसरे बंदे के अंदर यहाँ पर G है, तीसरे बंदे में T है, चौथे बंदे में A है। 4 अलील तो आपको मिल गए, बाकी ये जो सीक्वेंस है ये सेम है, ये सारों का सेम है। समझ लगी बात की? तो ये पूरे का पूरा जो अलील है, ये फर्ज किया यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
और ये दूसरा एलील यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये 100% सेम है सवाई इसके, तो हम इसको कहेंगे ये सी एलील है, ये जी एलील है। अगले इंडिविजुअल में यहाँ पर टी है तो ये टी एलील है, इसमें ए है तो ये ए एलील है। आगे जाके हमने देखा कि यहाँ पर डिलीशन हो गई है, कुछ भी नहीं है। और एक इंडिविजुअल में देखा कि यहाँ पर सी है, लेकिन सी के साथ जो अगला सीक्वेंस है वो यहाँ पर नॉर्मल ए था, ए ए ए ए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सी के बाद एक जी आ गया है और ये जो ए है ये आगे चला गया है। तो क्या हुआ है कि इस इंडिविजुअल के अंदर सी के साथ एक जी की इंसर्शन हो गया। इंसर्शन। ठीक है जी। अगर हमें 100 की पॉपुलेशन के अंदर 5 लोगों में ये सी मिला है, 5 लोगों में सी मिला है क्योंकि हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स थे। जी जो है 10 लोगों में जी मिला है, ये वाला अलील। 10 लोगों के हमने देखा है टी है, 10 लोगों में हमने देखा है ए है, 5 लोगों में देखा है ये डिलीशन वाला, और बाकी कितने रह गए? 10, ये हो गए 10 20 30 40 हो गए। 40 हो गए सर। और ये 60 लोगों में हमने देखा है कि ये इंसर्शन है। अब आप ये बताएं कि 5 लोगों में ये वाला लील, 10 में ये, 10 में ये, 10 में ये, 5 में ये, तो अगर हमने 100 की पॉपुलेशन स्टडी की है तो हमें कितने अलील मिले हैं? एक ही जीन के, फर्ज किया ये वाला जीन था एल, इस जीन के कितने अलील मिले हैं? एक अलील सी के साथ, एक अलील जी के साथ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे हमें इस जीन के 6 अलील मिले हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा अलील है पॉपुलेशन में? जी सर। ये वाला इंसर्शन वाला। इंसर्शन वाला जी, सी के साथ जी सर। जी की इंसर्शन वाला अलील मिला है सबसे ज्यादा। इस अलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम कहेंगे ये जो तीनों अलील हैं इनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में एक जैसी है, और ये वाला जो अलील है और ये वाला जो अलील है इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में भी सेम है पॉपुलेशन। तो अब हमें इस जीन के 6 अलील पॉपुलेशन के अंदर मिले हैं। ये बात समझ आई है? जी सर। चले अब पढ़ें जरा इधर। अब यहाँ से पढ़े पॉलीमार्फिक मार्कर्स। सब उस पेज से आप शेयर करें। अच्छा सर। Polymorphic markers are those that show sequence variation among individuals. समझ लगी? ये वो बात है जो मैंने आपको ये सारी समझाई है 100 बंदों की। Polymorphic markers are those that show sequence variation among individuals. Polymorphic markers are used to construct genetic linkage maps. Genetic linkage maps. The number of alleles observed in a population for a given polymorphism, which can vary from 2 to greater than 30, determines the degree of polymorphism. जी, तो अब आपने फर्ज किया वो जो जीन है उस जीन के कितने अलील्स जो हैं वो पॉपुलेशन में हमें मिले हैं 6 अलील्स। तो अगर 5 से ज्यादा अलील हों किसी जीन के, ठीक है, तो वो वाला जो लोकस होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये वो बात कर रहा है। For any study, highly polymorphic markers greater than 5 are most useful. तो वो हमने जो जीन लिया और हमने जो पॉपुलेशन पे स्टडी की तो हमें पता चला कि 100 लोगों के अंदर वो 6 अलील्स उसके पाए जाते हैं। लिहाजा ये वाला जो मार्कर है इसका पॉलीमॉर्फिक इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा है। इसे बोलते हैं PIC, पॉलीमॉर्फिक इंफॉर्मेशन कंटेंट। जिस
जिस अलील का पॉलीमॉर्फिक इंफॉर्मेशन कंटेंट 5 से ज्यादा हो तो कहता है कि वो यूजफुल होता है। आगे चलिए। Polymorphism may arise from several types of sequence variations. One of the earlier types of polymorphic markers used for genomic mapping is a restriction fragment length polymorphism, जीनोमिक RFLPs. मैपिंग के लिए सबसे पहले जो यूज होता था वो RFLP यूज होता था, रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका जिक्र हुआ पिछली क्लास में मेरा ख्याल। ये सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के तो कोर्स में। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने म्यूटेशंस ढूंढनी है, वो CGTC जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। तो आप क्या करेंगे, आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करके देख लेंगे कि वहां पर C है, G है, T है, या डिलीशन है या इंसर्शन है। An RFLP arises from changes in the sequence of a restriction enzyme recognition site, which alters the digestion patterns observed during hybridization-based analysis. जी। Another type of hybridization-based marker arises from a variable number of tandem repeat units, VNTRs. जी, VNTRs, ये मैं उधर लिखना भूल गया हूँ, ये भी उधर कर लें आप, जहाँ पर मैंने आपको मार्कर्स नहीं सारे बताए थे। जी सर, मार्कर्स। ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, आमतौर पर माइक्रोसैटेलाइट्स भी इन्हें बोलते हैं। A VNTR locus usually has several alleles, each containing a different number of copies of a common motif of at least 16 nucleotides tandemly oriented along a chromosome. जी। A third type of polymorphism is due to tandem repeats of short sequences that can be detected by PCR-based analysis. These are known variously as microsatellites, short tandem repeat STRs. STRs बोला जाता है, short tandem repeats बोला जाता है, और जो ऊपर वाले थे वो थे VNTRs, variable number tandem repeats, और वो common motif उनका at least 16 nucleotides का होता है। 16 nucleotides tandemly oriented होते हैं। STR polymorphism, STRPs, or short sequence length polymorphism, SSLPs. These repeat sequences usually consist of 2, 3, or 4 nucleotides and are plentiful in most organisms. All PCR converted STR markers, those for which a pair of oligonucleotide flanking the polymorphic site suitable for PCR amplification of the locus has been designed, are considered to be STS. ठीक है, तो ये इसमें अगर आप देखें तो ये वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। वैसे तो अगर आप इसको देखें तो ये है वो पहले वाला वेरिएबल नंबर रिपीट से, वेरिएबल टैंडम क्या था, वेरिएबल वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। जी सर। ये उसने कहा है कि 16 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 16 न्यूक्लियोटाइड्स, यही 16 न्यूक्लियोटाइड्स फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं जीनोम के अंदर, हेड टू टेल, हेड टू टेल, उसके बाद फिर रिपीट हो रहे हैं 16 न्यूक्लियोटाइड, फिर यही 16 न्यूक्लियोटाइड, फिर यही 16 न्यूक्लियोटाइड्स, फिर यही 16 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो 16 न्यूक्लियोटाइड्स ये रिपीट है, ये कितनी दफा रिपीट हुआ है, 1 2